हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फ्लेमिंगो क्लास 12 की बुक से एक पोइट्री लेसन मतलब एक पोइट्री के बारे में बताएंगे जिसका हेडिंग है कीपिंग क्वाइट। द नेम ऑफ द पोइट जिन्होंने पोइट्री को लिखे हैं पाब्लो नेरुदा। ही वॉज बोर्न इन 1904। पाब्लो नेरुदा इज द पेन नेम ऑफ नॉक्टल रिकार्डो Basanto, who was born in the town of Parral in Chile. Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Keeping Quiet is a peace poem written by poet Pablo Neruda. The poet asks humanity to count numbers from 1 to 12, 12 being the number of hours shown in a clock or the number of zodiac signs. He requests everyone not to speak because languages create barriers between people. The moment when everyone stops moving their body will be very special and different, as we have never experienced such a moment before. The poet says that in this period of inactivity, the fishermen would not harm the whales, the salt gatherers will not hurt their hands. Those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life. The men who are preparing for wars and victory based on deaths of innocent people will join their enemy and stand in unity with them, doing nothing. No one will harm himself or any other person. Everyone will unite and everyone will unite upon his acts and realize the results of his deeds. The poet clarifies his idea and says further that he does not want that people should stand idle. He wants that there should be no war because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soldiers. He is promoting universal brotherhood and peace. The poet says that everyone is working continuously to achieve one's goals. People are threatened by death, and the fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly. In this mad rush, they do not realize the they do not realize their acts. He wants us to pause and come out of the mad rush. He wants us to be happy about our achievements and celebrate them. He wants us to overcome the fear of death and to relax for a while. He should know the results of our deeds and celebrate our achievements. When the people will remain quiet for a while, they will realize the purpose of their lives. Just like all the creations of nature undergo a rebirth with the change of season, similarity, keeping quiet will be a rebirth for the human soul. It will give a new meaning to our life. Again, the poet says that we will count till 12 and ask everyone to remain quiet while he lives. तो स्टूडेंट्स ये था पोएम का समरी। अभी हम लाइन टू लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस चीज़ को देखिए। नाउ वी विल काउंट 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पोएट बता रहा है कि अभी हम लोग 12 तक गिनती करेंगे और तब तक हम लोग बिल्कुल शांत रहेंगे, चुप रहेंगे। मतलब 12 तक गिनती करने में जितना समय लगता है उतना देर हम लोग चुप रहेंगे। कोई किसी से बातचीत नहीं करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ में हम लोग शामिल नहीं होंगे। तो भी हर व्यक्ति से ये रिक्वेस्ट कर रहा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ
लेट्स नो स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कभी कभी अगर हम लोग चुप रहे, किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, तो शायद बहुत कुछ उससे हम लोग को मिल जाता है। किंतु क्योंकि लैंग्वेज जो होता है, हर व्यक्ति अलग अलग भाषा में बात करते हैं। कोई फ्रेंच बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, तो इसमें क्या होता है, एक हलचल पैदा होता है। लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते सही ढंग से। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी में ऐसे एक समय आना चाहिए जब लोग कम से कम 1 से 12 तक गिनती करने में जितना समय लगता है उतनी देर के लिए चुप हो जाए, शांत हो जाए। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स टू मच। कभी ये भी कह रहा है कि सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हम लोग रुक जाए। जो हमारी भुजाएं हैं, बाहें हैं, वो उसका हाथ है, उसको हम लोग ना फैलाए। कुछ समय के लिए हम लोग बिल्कुल शांत रहे, हाथ से कोई काम ना करें। इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। इसके मतलब कवि कह रहा है कि अगर ऐसा हो तो एक अनोखा एक वातावरण आ जाएगा। विदाउट रास, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। कवि बता रहा है कि अगर कुछ देर के लिए हम अपना इंजन को बंद कर दें, जो मशीन चल रहा है उसको हम बंद कर दें, सिर्फ 1 सेकेंड के लिए, या तो 1 से 12 तक गिनती करने के लिए जितना समय लगता है उतने समय के लिए, तो हमारे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। फिशरमैन जो समुद्र में जाते हैं, कोल्ड सी में मछुआरे जो जाते हैं, अगर वो कुछ देर के लिए रुक जाए तो वेल मछली जो होता है उसको नहीं मारेंगे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। और जो इंसान सॉल्ट गैदर करते हैं समुद्र के जाकर, उनके हाथ कितना खराब हो जाता है, उनके हाथ में घाव आ जाता है। अगर उस थोड़ी देर के लिए रुक जाए और जितना सॉल्ट इकट्ठे किए हैं उसमें संतुष्ट रहे, तो कुछ समय के लिए मतलब उनके हाथ को जो हानि पहुंच रहा है उससे वो उनको मुक्ति दिला पाएंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वेयर्स, या ग्रीन का अर्थ होता है नेचर, वेयर्स विद गैस, वेयर्स विद फायर, है ना। जो लोग नेचर के साथ लड़ाई कर रहा है, नेचर को नष्ट कर रहा है, नेचर को ध्वंस कर रहा है, खत्म कर रहा है, जो गैस लेकर मतलब दुनिया में लड़ाई कर रहा है, अलग अलग गैस से लोगों का हानि हो रहा है, समाज को हानि हो रहा है, हमारा दुनिया खत्म हो रहा है, और फायर, अग्नि से जो लड़ाई हो रहा है, अगर ये सब चीज़ कुछ समय के लिए रुक जाए तो दुनिया बदल जाएगी। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लड़ाई करने के बाद वो जीत जाएंगे, मगर ये जो जीत है क्या मतलब रखता है जब पूरी दुनिया में सब इंसान ही खत्म हो जाएंगे, हमारी जो नेचर है, प्रकृति खत्म हो जाएगा, उसमें कोई कुछ भी नहीं बचेगा, तो ऐसे विजय प्राप्त होने से क्या मतलब है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। यहाँ पोएट और बता रहा है कि जो मतलब जो जो जब वो लड़ाई करते हैं, लड़ाई के दौरान उन जो कपड़े पहने हुए रहते हैं वो खून से भर जाता है। अगर ये कपड़ा वो छोड़ दे, कोई दूसरा क्लीन क्लॉथ वो पहन ले, साफ कपड़ा वो पहन ले, और जिनको वो एनिमी समझते हैं, जिनके साथ वो लड़ाई करते हैं, उनको अपना भाई समझकर उनसे गला मिला ले, इन द शेड डूइंग नथिंग, मतलब वो छावा में जाके उनके साथ कुछ देर के लिए बैठ जाए और कुछ ना करे। What I want should not be confused with total inactivity। मैं जो बोल रहा हूँ कि मतलब किसी को भी काम करने के लिए मना कर रहा हूँ, इसके मतलब ये नहीं है कि मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग बिल्कुल इनएक्टिविटी हो जाओ, कुछ भी ना करो, कुछ तो आपको करना है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए, आप क्या ज़िंदगी में क्या पाया, क्या हुआ, और क्या काम अभी तक आप करते आए, उस चीज़ के बारे में सोचिए। आई वॉन्ट नो ट्रैक विथ डेथ। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई रास्ता तैयार हो जिसमें सिर्फ डेड बॉडी है हो, डेड बॉडी के ऊपर से हम कोई रास्ता बनाने नहीं चाहते। If we are not so single-minded about keeping our lives moving, and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt with sadness, this sadness of never understanding ourselves and of threatening
ourselves with death. हम डेड बॉडी के ऊपर जैसे रास्ता बनाना नहीं चाहते, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहेंगे और हमेशा दुख को साथ में लेकर नहीं चलेंगे। हम एक दूसरे को समझने के लिए कोशिश करेंगे और सबके साथ भाईचारे की व्यवहार करके हर जगह पे शांति, पीस लाने के लिए कोशिश करेंगे। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. नेचर, पृथ्वी हमें क्या सिखाते हैं कि हम अच्छा से रहें, एक खुशहाली ज़िंदगी बिताएं, मृत्यु के बारे में नहीं सोचते हैं और मृत्यु के हम चाहते नहीं हैं कि डेथ जो है वो उसके साथ हम जिंदगी बिताएं। हम डेथ से बाहर, मृत्यु से बाहर हम अच्छा से ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, सबको हम जिंदगी देना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि सब कोई मतलब मर जाए, सबको मतलब कोई दुनिया में ना बचे। आई डू नॉट वॉन्ट एनी डीलिंग्स विद डेथ, पोएट ये भी कहते हैं। नाउ आई शैल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट, आई विल गो। अब मैं 12 तक गिनूंगा और आप सब शांत रहिए, फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो इसका हिंदी में थोड़ा सा और देख लीजिए, इसका जो अर्थ है इस पोएम का। बहुत मीनिंगफुल एक पोएम है जो पोएट के द्वारा लिखा गया है। कीपिंग क्वाइट चिली के कवि पाब्लो नेरुदा द्वारा लिखित एक शांति कविता है। कवि मानवता को 1 से 12 तक संख्या गिनने के लिए कहता है। 12 एक घड़ी में दिखाए गए घंटों की संख्या या राशि चिन्हों की संख्या। वो सभी से अनुरोध करता है कि वे ना बोले क्योंकि भाषा लोगों के बीच अवरोध पैदा करती है। जिस क्षण हर कोई अपने शरीर को हिलाना बंद कर देगा वो बहुत ही खास और अलग होगा, क्योंकि हमने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। कवि कहता है कि निष्क्रियता से इस दौर में मछुआरे वेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नमक इकट्ठा करने वाले को अपने हाथों को चोट नहीं पहुंचाएगी। जो लोग प्रकृति को नष्ट करने में व्यस्त है, वे जीवन के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे। जो पुरुष युद्ध और जीत की तैयारी कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की मौतों के आधार पर उनके दुश्मन शामिल हो जाएंगे और उनके साथ एकता में खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। कोई भी खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हर कोई एकजुट होकर अपने कृत्य पर विचार करेगा और अपने कार्यों के परिणामों को महसूस करेगा। कवि अपने विचार को स्पष्ट करता है और आगे कहता है कि वो नहीं चाहता कि लोग बेकार खड़े हो। वो चाहता है कि उसे ना हो, क्योंकि वो सैनिकों के शवों से लदे ट्रकों को नहीं देखना चाहता। वो सार्वभौमिक भाईचारे और शांति को बढ़ावा दे रहे हैं। कवि कहता है कि हर कोई लगातार काम कर रहा है एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। लोगों को मौत की धमकी दी जाती है और डर ने अंतहीन काम करने के लिए मजबूर करता है ताकि वे सब कुछ जल्दी से हासिल कर सके। इस पागल भीड़ में उन्हें अपने कृत्यों से उनका एक एहसास नहीं होता है। वो चाहता है कि हम रुके और पागल भीड़ से बाहर आए। वो चाहता है कि हम अपनी उपलब्धियों के बारे में खुश रहें और उन्हें मनाएं। वो चाहता है कि हम मौत से डर को दूर करें और थोड़ी देर के लिए आराम करें। हमें अपने कर्मों के परिणामों को जानना चाहिए और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाना चाहिए। जब लोग कुछ समय के लिए शांत रहते तो उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का एहसास होगा। जैसे प्रकृति की सभी रचनाएं ऋतुओं के परिवर्तन के साथ पुनर्जन्म से गुजरती है, वैसे ही शांत रहना मानव आत्मा के लिए पुनर्जन्म होगा, जो हमारे जीवन को एक नया अर्थ देगा। फिर कभी कहता है कि वो 12 तक गिनती करेगा और सभी को चुप रहने के लिए कहता है। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी ये पोएम यहीं समाप्त हो रहा है। आगे जो क्वेश्चंस है आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर